Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now RBI Assistant exam is also over. Multiple exams are ahead of us. The main exams now are due: IBPS, RRB Officer, IBPS, RRB Clerk, IBPS PO. For some candidates, even pre is also due because they have filled the supplementary advertisement. So now for them, IBPS RRB officer pre is also due, IBPS RRB office assistant pre is also due, IBPS PO pre is also due, and IBPS clerk pre is due for most of the candidates. So if you are appearing on 5th December 2020 for IBPS clerk, your focus should be 100% on IBPS clerk these days, because only less than 2 weeks are left and 2 weeks extensive preparation for the exam is necessary. How you should prepare for these exams, I am uploading daily one video on that. Follow those tips. Then there are people who has to appear on 12th December or thereafter. For them, we will continue to focus on one exam per day so that we are carrying all the exams put together. So today focus is our IBPS RRB officer main. For pre-candidates, they will utilize the same video and they will only focus on the pre aspects only of this video. So today you will attempt one mock test from IBPS RRB main series. Link is available in description and comment column. Here you have to take a precaution. If you have done any mock test of main in last 3 days, you need not attempt mock test today, because over usage of mock test will drain away your time. So we will be using one mock test with a gap of 3 days if it is a mains mock test. And if it is a pre-mock test, it will be done on the alternate day basis. Don't overspend time on mocks. It will take away your time. The purpose of mock is to identify our weaknesses and then focus on very fundamental study, elementary study, where we are able to improve our skills, where we are able to improve our knowledge. So after identification of your weak points, you will make the timetable. 1 hour you will spend on language, Hindi or English, whatever you have opted. Take rest of half an hour, then spend 1 hour on quant, half an hour rest, 1 hour on reasoning. Then comes the role of current affairs. Current affairs is very crucial. And in this examination, you can have very detailed current affairs. And to cover the detailed current affair, you should have deep knowledge of current affairs. And that's why I suggested a very good source of current affairs to you. Subscribe this. And after subscription, you will get monthly, weekly and daily PDFs. Start reading few pages from monthly PDF. Link is available in description box. Then take rest of half an hour and watch banking, economic and financial awareness videos. Link is available in description box. Watch at least 10 videos from this. Then take rest of half an hour and then move to banking current affair videos. Again, 5 playlists are available in your description box. So if you will move in such a systematic manner, you are bound to improve on daily basis. And if you are able to improve on daily basis, naturally you are very close to success and you can become ultimately successful. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल आरबीआई असिस्टेंट का हमारा एग्जाम खत्म हो गया. अब हमारे बाकी एग्जाम बचे हैं, जिसके अंदर हमारा एग्जाम है IBPS RRB ऑफिसर मेन, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेन, IBPS PO मेन. उसके अलावा हमारा SBI का एग्ज़ाम है. उसके अलावा हमारा IBPS
क्लर्क का प्री और मेन है। इसके अलावा उन लोगों का प्री भी है जिन्होंने एडिशनल नोटिफिकेशन के अंतर्गत अप्लाई किया। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? तो जिन लोगों का तो 5 दिसंबर को IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, उनको तो आप पूरा फोकस IBPS क्लर्क पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि 13 दिन आपके बचे। तो इसलिए जो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, पहले हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब जिन लोगों का 5 को एग्ज़ाम नहीं है, 12 को है या उसके बाद है, उन लोगों को ये जो मल्टीपल एग्ज़ाम वाली सीरीज़ है, इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो आज हम फोकस करेंगे IBPS RRB ऑफिसर एग्ज़ाम की, और यही वीडियो जिन्होंने प्री देना है उनके लिए भी यूज़फुल है IBPS RRB ऑफिसर की, कि वो प्री वाला हिस्सा इसमें से आज अपना शेड्यूल बना के करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया एक अच्छा मॉक टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में है, आज आप एक मॉक टेस्ट मेन का IBPS RRB PO वाला करेंगे। अब ये आपने तब करना है जब पिछले 3 दिन में आपने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेन का मॉक टेस्ट का आपने कम से कम 3 दिन का गैप देना है, क्योंकि एक्सेस अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम आपका मॉक टेस्ट में ही निकल जाएगा। तो फिर जो रियल पढ़ाई है उसको करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो है फंडामेंटल प्रिपरेशन पे अधिक से अधिक टाइम देना है। मॉक टेस्ट सिर्फ हमारी कमियां ढूंढने का एक साधन है, मगर जैसे ही हमें कमी पता लग रही है तो हमें उन कमियों वाले एरियाज पे टाइम स्पेंड करना है। ये तरीका है सक्सेस का। अब आप टाइम टेबल बना लीजिए, 1 घंटा इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज ऑप्ट की है उसको लगाइए, 1 घंटा क्वांट को लगा दीजिए, फिर 1 घंटा रीजनिंग को लगाइए, और हर 1 घंटे के बीच में आधे घंटे का गैप जरूर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप साथ साथ रेस्ट करते जाएंगे तो एक तो बोर्डम नहीं होगी, और एक जो आप पढ़ेंगे वो रिटेन होएगा। काफ़ी लोगों की समस्या होती है कि सर मैं पढ़ बहुत रहा हूँ, याद ही नहीं रह रहा। उसका कारण ये है कि हम ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं अपने ब्रेन को। उसको प्रॉपर रेस्ट देते जाइए। टाइम आपके पास अनफ है। कई लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना टाइम आपके पास है उतना ही आपके कंपटीटर के पास है। फर्क सिर्फ इतना है, आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। वो निरंतर नहीं पढ़ रहा, वो पिछड़ जाएगा। टाइम ना वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। टाइम सबके पास है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो शायद समझ नहीं रहे कि दूसरे के पास भी नहीं है। सबके लिए एक जैसी स्थिति है, एक जैसा टाइम। इसके बाद 1 घंटा आपने देना है करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी करना, अच्छे सोर्स से तैयारी करना निहायत जरूरी है, और इसीलिए मैंने छांट के आपको एक अच्छा सोर्स दे दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसको आप सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी लोग फ्री मटेरियल के पीछे पड़े रहते हैं, इसको आप बिल्कुल टेंशन ना लेके इसको सब्सक्राइब कर लो। देखो, अगर आपको 100, 200, 300 रुपये खर्चने भी पड़ जाए, इसको खर्चिए, क्योंकि लाखों रुपए की ये नौकरी है जो आपके हाथ में आ सकती है। तो कई बार क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं कि यार ये 200 रुपये क्यों खर्च करें, हम 300 रुपये क्यों खर्च करें, इसको बचा लेते हैं, मगर उससे हमारा 1 साल जाया हो जाता है। क्योंकि कई बार कहीं से भी मटेरियल आया उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर ये ध्यान नहीं देते कि ये हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक अच्छे मटेरियल को पढ़ना, चाहे वो खरीद के क्यों ना पढ़ना पड़े। तो ये हमें समझदारी से काम करना है। ये नहीं है कि जहाँ से कोई भी मटेरियल मिल गया उसकी क्वालिटी ठीक है नहीं है और हम लग गए। कई लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं का भी मटेरियल, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा सोर्स ही होता है, और एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑर्डिनरी ही होता है। अगर कोई प्राइसिंग कर रहा है किसी चीज़ की, किसी क्वालिटी की वजह से ही वो करते हैं। हम मेहनत करते हैं, उसको तैयार करने में लोगों को लगाते हैं, एक्सपर्ट्स को लगाते हैं, उनको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो उनको प्राइसिंग भी करनी पड़ती है। तो इसको आपको बहुत ओपन माइंड से सोच के, अपने कैरियर को ध्यान में रख के, कुछ और खर्चों को घटा के, जहाँ जरूरी है वहाँ पर खर्च करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी सलाह है। आधा घंटा आप रेस्ट करिए। इसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस की मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। देखो, जो मेरे बस में है, जो मेरी क्रिएशंस हैं, सब आपको फ्री है। अब ग्रुप डिस्कशन में आपकी करवा रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है।
इंटरव्यू की मैं गाइडेंस आपको दूंगा, एब्सोल्युटली फ्री है। रिटर्न एग्जामिनेशन की मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री है। पर जो प्रोडक्ट किसी ने बनाए हैं, उसने खर्चा किया, वहाँ आपको पैसा स्पेंड करना चाहिए और करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हमें फ्री नहीं मिल सकती है, ये भी हमें मान के चलना है। थोड़ा बहुत खर्च करके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं और हम सक्सेस पा सकते हैं, 1 साल की तनख्वाह 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी होती है कई जॉब्स के अंदर, 10 लाख तक भी होती है। तो हमें ये सोच के चलना है कि अगर हम 1 साल मिस कर रहे हैं तो हम इतना पैसा लूज भी कर रहे हैं। तो अगर हम स्पेंड करके उसको पकड़ पाते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। अच्छा मटेरियल कुछ फ्री मिलेगा, कुछ पेमेंट करके मिलेगा, कॉम्बिनेशन बना के हमें ज़िंदगी में आगे चलना चाहिए। इसके बाद आधा घंटा आप रेस्ट कर लीजिए और बैंकिंग करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो आप देखिए। इस तरीके से आप तैयारी करिए, सक्सेस आपको मिलेगी। रेगुलर स्टडी, रेगुलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, यूज ऑफ गुड मटेरियल, ये आपके सोर्स हैं सक्सेस के। गॉड ब्लेस यू ऑल।